پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین۔ اس وقت ایم کیو ایم کے سینئر رہنما امین الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین الحق صاحب بہت شکریہ۔ آج ہم نے پریس کانفرنس بھی آپ کی سنی جو فاروق ستار صاحب نے کی، جو کل سے کراچی میں بارشوں کے بعد ایک سندھ حکومت کے اوپر تنقید سامنے آ رہی ہے۔ اس میں ایک تاثر تو یہ ہے کہ یہ تو کلائمیٹ چینج ہے، تو اس کے اوپر جو سندھ حکومت کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی اس وقت جو ان بارشوں کے بعد کی صورتحال ہے اس کی ذمہ دار سندھ حکومت ہے؟ دیکھیں نادر، میرا خیال ہے کہ پچھلے 18 سال سے سندھ حکومت بلا شرکت غیرے سندھ پہ حکمرانی کرتی چلی آ رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر پچھلے 4.5 سال سے دیکھتے ہیں تو یہ مرتضی وہاب صاحب پہلے ایڈمنسٹریٹر رہے 2-2.5 سال، اور 2 سال سے میئرشپ بھی ان کے پاس ہے۔ وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا ہے، وزیر بلدیات پیپلز پارٹی کا ہے، اور کراچی کے اندر اگر لگ بھگ 200 ملی میٹر بارش پورے دن میں ہوتی ہے تو پورا کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ بربادی کے دانے پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 18 سال کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سندھ کی حکومت ہے، اس کو لگ بھگ 22,000 ارب روپے فیڈرل گورنمنٹ سے NFC کے مد میں ملتے ہیں۔ 95% سندھ گورنمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ کراچی کے ٹیکس سے پلتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنے ہزاروں ارب روپے جب حاصل ہوتے ہیں تو یہ کراچی پہ خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ کے پاس ویژن نہیں ہوگا، آپ کی سوچ آگے نہیں ہوگی، آپ براڈ مائنڈ نہیں ہوں گے، تو پھر آپ جو عمل کراچی کے ساتھ کر رہے ہیں اس سے یہی حال نظر آتا ہے کہ آپ شہرہ فیصل دیکھیں، آپ شہرہ پاکستان دیکھیں، حتیٰ کہ ابھی آج سے میرا خیال ہے چند ہفتے پہلے جو ہے، غالباً 5 ہفتے پہلے جو ہے شہر بھٹو یعنی ملیر ایکسپریس وے کا افتتاح کیا گیا۔ اس کی حالت جا کے دیکھ لیں کیا صورتحال ہے۔ ابھی چند دن پہلے لیاقت آباد میں جماعت اسلامی کا جو ناظم ہے اس نے روڈ کا افتتاح کیا، وہ روڈ ختم ہو چکی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ویژن نہیں ہے، ول نہیں ہے، تو پھر یہ جو صورتحال کراچی کے عوام کے ساتھ ہے یہی صورتحال رہے گی۔ بارش ہونے کے بعد پوری لیکن امین الحق صاحب، یہ جو مرتضی وہاب صاحب نے، سعید غنی صاحب نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں جن میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سڑکیں ہیں جو کل پانی کی نظر ہو گئی تھیں یا جہاں پر پانی تھا وہ بالکل کلیئر ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ سڑکیں کلیئر ہو چکی ہیں؟ آپ کو یہ ریپیٹ اٹ اگین، آپ کی آواز کٹ رہی ہے ذرا۔ جی امین الحق صاحب، میں نے کہا جو سعید غنی صاحب اور مرتضی وہاب صاحب نے کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی ہیں کہ یہ سڑکیں وہ ہیں جن کے اوپر ان پر تنقید ہو رہی تھی، وہاں پر کوئی پانی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیئر ہے۔ بڑے مزے کی بات ہے کہ پورے کراچی کے عوام جو ہے سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں رات سڑکوں پہ گزاری ہے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ خواتین اپنے گھروں پہ نہیں پہنچے کہ وہ اپنے آفیسز میں رہی ہیں۔ صرف اور صرف پورے دن سے لے کر رات تک MKM کے نوجوان کارکنان MPA سے میں نے سڑکوں پہ موجود رہے، لوگوں کو ہیلپ کرتے رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، جو آپ کے جو بڑے بڑے چینلز ہیں انکلوڈنگ آپ کا چینل بھی ہے، تمام دن میرا خیال ہے کل فوٹیج دکھاتا رہا کہیں پہ 3 فٹ، کہیں پہ 4 فٹ، کہیں پہ 6 فٹ پانی جمع تھا۔ اور آج اگر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ کلیئر ہے تو بڑی حیران کن بات ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب بارش ہو رہی تھی تو میئر صاحب کو باہر نکلنا چاہیے تھا، منسٹر صاحب کو باہر نکلنا چاہیے تھا، اس وقت ایئر کنڈیشن کے مزے لے رہے تھے۔ اس شہر کو جو اون کرتی ہے دراصل وہ MKM کرتی ہے، MKM کے کارکنان، MKM کے اراکین قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، ٹاپ لیڈرشپ سڑکوں پہ موجود تھی، اپنے عوام کے درمیان موجود تھے، ان کی خدمت کر رہی تھی۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے نا کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہو رہی ہے؟ جب 18 سال سے آپ کی حکومت ہے، آپ کے پاس پیسہ کوئی ایشو نہیں ہے، اربوں روپے آپ کے پاس موجود ہے، تو آپ انفراسٹرکچر کو بہتری کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ اب آپ دیکھیں میئر صاحب کی 2 بڑی متضاد باتیں ہیں۔ آج سے 6 دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اس سے پہلے 1 دن اور 7 دن پہلے پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ کراچی کا نالا جو ہے وہ 70 سے 80 ملی میٹر بارش برداشت کر لے گا۔ کل جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو بالکل 80 ملی میٹر سے کم کر کے 40 ملی میٹر پہ لے کر آ گئے۔ ارے بھائی آپ کو کس نے روکا ہے؟ امین الحق صاحب، یہ جیسے آپ نے ذکر کیا مختلف شاہراہوں کا یا بجٹ کے حوالے سے، ووٹ نہ دینے کے حوالے سے، لیکن پیپلز پارٹی تو یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے نا کہ بارش کے دوران میئر صاحب جو ہیں وہ بھی سڑکوں پر موجود رہے، CM صاحب نے رات دورہ کیا، شرجیل میمن صاحب اور پوری سمجھے کہ کابینہ کے جو ممبرز تھے وہ بھی تھے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید جائز ہے کہ وہ گھروں میں بیٹھے رہے یا ایسی میں بیٹھے رہے؟ دیکھیں نادر، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ آج جو بھی صوبائی وزراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کراچی میں نہیں رہتا ہے اور وہ کراچی کو اون بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ میرا خیال ہے منڈے آتے ہیں اور تھرسڈے نائٹ یا فرائیڈے نائٹ کو اپنے اپنے علاقوں میں چلے جاتے ہیں۔
कराची के अवाम ट्रैफिक जाम में फंसना, बारिशों में मुसीबत उठाना, ये कराची के अवाम को लगता है कि मुकद्दर में लिख दिया गया इन नाहलों की बिना पर। आप देखिए कि कल सुबह बारिश शुरू होती है और उसके बाद बिल्कुल बारिश जो है 11 के करीब खत्म हो जाती है, 11:30 पे। फिर दोपहर के 1:15 बजे बारिश शुरू होती है, कोई एक आदमी बाहर नहीं निकला। चीफ मिनिस्टर साहब रात के 12 बजे दौरे पे निकलते हैं जब बारिश खत्म हो चुकी होती है, और वो दौरा करके जिसे कहते हैं कि फोटो सेशन करके वो अपने चीफ मिनिस्टर हाउस पहुंच जाते हैं। उसका वाइस वर्सा देखे कि एमकेएम के कारकुनान दोपहर से लेकर हर इलाकों के अंदर मौजूद थे। एमकेएम के अरकान कौमी असेंबली मौजूद थे, डॉक्टर फारूक सत्तार हो या गवर्नर हो, मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे थे, लोगों को सहूलत पहुंचाने की कोशिश करते चले आ रहे थे। साथ साथ हम के इलेक्ट्रिक के लोगों से भी राब्ते में थी कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक खुलवानी है, कहाँ पे बंद करवानी है। ये तमाम चीजें एमकेएम कर रही थी। होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जब आपके पास सालाना एनएफसी यानी कि अगर हम 2024 को देखते हैं तो 1800 अरब रुपए एनएफसी सिंध गवर्नमेंट को मिला है। और जैसे मैंने कहा कि 95% जो सिंध हुकूमत के अखराजात जो कराची के टैक्स से पलता है, तो वो कुछ पैसे कराची में इन्वेस्ट तो करे ना। 100 अरब लगा दे, 200 अरब लगा दे। लेकिन सर फिर पीपल्स पार्टी तो फिर ये भी कहती है कि ज्यादा वक्त तो फिर कराची जो है वो एमक्यूएम के हवाले रहा है, एमक्यूएम की वहां पर हुकूमत रही है। देखो मेरा ख्याल है कि नादिर, लेट मी करेक्ट द थिंग, ठीक है ना। 2008 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 18 साल से सिंध में हुक्मरानी करती चली आ रही है। एमकेएम 2012 के पास सिंध में ऑपोजिशन जमात का हिस्सा रही है, और इसी तरीके से पिछले 5 साल से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर उनके पास है। तो साफ नजर आता है ना कि तीनों टियर यानी कि वजीर आला भी उनका है, वजीर बल्दियात भी उनका, मेयर भी उनका है। ये जिम्मेदारी बनती किसकी? यस, हम अपने कराची को ओन करते, अपने अवाम को ओन करते, और हमारी ख्वाहिश होती है कि हम अपने अवाम के दरमियान मौजूद रहे। हमारे पास इख्तियार हो या ना हो, हमारे पास काम करने के जिसे कहते हैं कि हमारे वसाइल पे काबिज नहीं है। हम वसाइल पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबिज है, एडमिनिस्ट्रेशन पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत काबिज है, लेकिन इसके बावजूद एमकेएम के अरकान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली या एमकेएम का जो जिम्मेदार है अवाम के दरमियान मौजूद रहता है। यही वजह है कि पिछले 40 सालों से जब ऐसे मौके पर हम अवाम के दरमियान रहते हैं तो रिटर्न में पर एमकेएम को वोट भी मिलता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की वाहिद सियासी पार्टी है जो पिछले 4 दहाइयों से शहरी सिंध पर मतलब जिसे कहते हैं अवाम के दिलों पर जिसे कहते हैं राज करती है, और यही वजह है कि अवाम बदले में उसको वोट भी देती है। तो ये साफ नजर आता है कि ये कराची का, हैदराबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बादी के दहाने पर लाने वाले ये सिंध हुकूमत है, और सिंध हुकूमत के पास वसाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन वसाइल का सही इस्तेमाल करना असल बात है। ठीक है, लेकिन फिर आपकी नज़र में अमीनुल हक साहब इन तमाम इश्यूज का हल क्या है आपकी नज़र में? देखिए सिंपल सी बात, मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं ना कि अक्सर इसका होना क्या चाहिए कि जब आपको डेवलपमेंट पैकेज बनाने जा रहे होते हैं तो आप कराची के अवाम को ऑन बोर्ड लें, कराची के अरकान के कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली को, हैदराबाद के अवाम को, हैदराबाद के अरकान कौमी असेंबली को ऑन बोर्ड लें, और मेक श्योर करें कि आप तासीर की बुनियाद पर, लसानियत की बुनियाद पर, जिसे कहते हैं कि एमकेएम दुश्मनी की बुनियाद पे मतलब कोई कारकर्दगी नहीं दिखानी है, बल्कि आपने सबको साथ लेकर शहर की बेहतरी के लिए। देखिए हम सब ये कहते हैं ना कि कराची तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, तो कराची की तरक्की जो मुल्क की तरक्की में जुड़ी हुई है, तो हमें हर सूरत में शहर की बेहतरी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, कराची के अवाम के पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, स्कूल का मसला हो, दाखिले का मसला हो या बेरोजगार का मसला हो, तो आप अगर एमकेएम को ऑन बोर्ड लेते हैं, शहर के नुमाइंदों को ऑन बोर्ड लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि शहर की बेहतरी के लिए बेहतर से बेहतर काम हो सकता है। ठीक है, लेकिन अमीनुल हक साहब आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई या पीपल्स पार्टी आप पर तनकीद भी करती है कि आप हमेशा कराची को अलग करने की बात करते हैं, और आज फारूक सत्तार साहब ने कहा कि एमकेएम कराची को अलग सूबा बनाने या सिंध से अलग करने की बात नहीं कर रही बल्कि खुद पीपल्स पार्टी ने की है। तो आपकी नज़र में किस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो कराची को अलग करने की बात कर रही है? देखो नादिर, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सिंध तरक्की करे। जब सिंध तरक्की करने की बात करते हैं तो कराची भी तरक्की करे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कराची के, हैदराबाद के अवाम को रोजगार नहीं दिया जाता है, उनके साथ क्या कहते हैं मेडिकल प्रोफेशनल कॉलेजेस में दाखिले से रोका जाता है, और कराची में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में कोई काम नहीं किया जाता है। आज जिसे कहते हैं 21वीं सदी में रह करके भी हम क्या है चिंची रिक्शे पे सफर कर रहे हैं। हमें जो है
जो पानी के मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, मेट्रो का मसला हो, इनके किसी जगह पर भी हमें नजर आता है ऐसा कि सौतीली माँ का सलूक कराची और हैदराबाद के अवाम से किया जा रहा है। तो फिर कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम सोचने में मजबूर हो जाते हैं ना कि हम जब आप हमें ओन नहीं करते हैं तो ठीक है जी, आप हमें अलग मसला हल करके दें। तो लेकिन आज भी एमकेएम की पॉलिसी है कि यस, हम अभी सिंध के साथ मिल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी ख्वाहिश ये है कि यस, सिंध तरक्की करे, कराची तरक्की करे। लेकिन हाँ, जैसा फारूक भाई ने कहा कि आपके अमल से साबित हो रहा है कि आप हमें ओन नहीं करते हैं। तो कराची के अवाम में कल अगर आप पूरा सोशल मीडिया उठा के देख लें नादिर, तो आप ऐसे ऐसे कमेंट देखेंगे, कराची के अवाम तो मतलब परेशान हाल में ही मुतालबा करेंगे ना कि भाई आप हमें ओन नहीं करते, पर हमें अलग कर दे, ठीक है, हमें अलग एडमिनिस्ट्रेटिव सूबा बना दे। तो ये चीज मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी तक की जिम्मेदारी बनती है, वो सबको ओन करे, सबको साथ लेकर चले। ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल सर, आपने जिक्र किया तालीमी इदारों और एडमिशन के हवाले से, तो हाल ही में गवर्नर साहब का एक बयान आया था जिस पर पीपल्स पार्टी ने भी तनकीद की, बाकियों ने भी, कि जो उन्होंने कहा था कि सिंध के बाज़ इलाकों से लोग आते हैं और यहाँ पर आके एडमिशन अपने बच्चों को दिलवाते हैं, तो उनको यहाँ नहीं आना चाहिए। आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखो नादिर, हम क्या कहते हैं, अगर कराची का बच्चा है तो कराची का बच्चा कहाँ तालीम हासिल करेगा? अगर वो लियाकताबाद में रहता है, न्यू कराची में रहता है, बंस रोड पे रहता है, लांडी में रहता है, औरंगी में रहता है, तो वो तो उन्हीं स्कूलों में, उन्हीं तालीम इदारों में तालीम हासिल करेगा ना। आप हमें दाखिला लड़काना में नहीं देते, आप बच्चों को दाखिला IBA सक्कर में नहीं देते, आप यहाँ के बच्चों को दाखिला दादू में नहीं देते, तो वाइस वर्सा ये होना चाहिए ना। हम तो मना नहीं करते, लेकिन पहले कराची के बच्चों को कराची के तालीमी इदारों में दाखिला मिल गया, उसके बाद दूसरों को मिले। सेम चीज हम ये कहते हैं कि लड़काना में भी होना चाहिए, पहले लड़काना के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए, बदीन के बच्चों को दाखिला मिलना चाहिए। अगर वहाँ सीटें बच जाती है तो आप कराची के ले लें। तो इसके ऊपर मेरा ख्याल कोई तासिब की बात नहीं है, कोई लसानियत की बात नहीं है, बल्कि ये तो मेरिट की बात है। अगर लाहौर ले लें, पेशावर ले लें, अगर लाहौर के बच्चों को दाखिला लाहौर में नहीं मिलेगा, पिंडी के बच्चों को पिंडी में दाखिला नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ जाएंगे? सेम कंडीशन कराची के साथ है। कराची जब 2.5 करोड़ की आबादी है, 3 करोड़ की आबादी है, बच्चा कहाँ तालीम हासिल करने जाएगा? उसका पहली प्रायोरिटी तो ये होता है ना कि कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, लॉ मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिले। अब उन्हें दाखिला अगर नहीं मिलेगा और बाहर से बच्चे आकर तालीम हासिल करेंगे तो क्या होगा? चलें, ठीक है, उसके दिल में लावा फैलेगा ना, वो बगावत की बात तो करेगा। तो उन चीजों को समझने की बात है। मैं समझता हूँ कि यस, सूबाई हुकूमत को भी समझना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी समझना चाहिए, मुख्तलिफ हलकों को भी समझना चाहिए कि कराची का बच्चा, कराची का नौजवान, कराची का तालिब इल्म को कराची में दाखिला मिलना चाहिए। अगर सीटें बच्चे तो बिल्कुल, अब उसके बाद अब सिंध को दे, पूरे पाकिस्तान को दे। चलें, ठीक है। अमीनुल हक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।